Hello everyone. In today's video we are going to discuss about a company. एक ऐसी कंपनी जिसके more than 130 million subscribers है. It is operating in almost 192 countries. It is as good as the number of UN members, almost similar to that. And a company which has a market capitalization of more than $100 million. Yes, I'm talking about an online video streaming giant, Netflix. तो नेटफ्लिक्स की शुरुआत कैसी हुई? Now it all goes back to 1997. 1997 में रीड हेस्टिंग्स अपोलो 13 नाम की एक मूवी की वीडियो कैसेट उन्होंने रेंट पे ली थी और रेंटल शॉप का नाम था ब्लॉकबस्टर वीडियोस. ना अब वो वीडियो कैसेट खरीद के तो लेके आए बट उन्होंने ऑन टाइम रिटर्न करना भूल गए, जिसकी वजह से जब 6 वीक्स के बाद जब वो रिटर्न करने गए उन्हें $40 की पेनल्टी पे करनी पड़ी. वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग आउट इन द जिम, देन ही रियलाइज्ड दैट द जिम पेमेंट मॉडल इज सो ग्रेट दैट यू हैव टू पे इट वंस फॉर अ मंथ and you can do as much exercise you can do. Why not this payment model can be applied to the VCRs? Then he discussed this idea with his friend Mark Randolph. At that point of time, Amazon has just started in selling the books online. And Randolph was so excited and curious, and he was in total admiration of the Amazon model of selling books online. Then he was like, okay, we can come up with an idea whereby we will rent out VCRs or the DVDs online. So यहाँ से start हुई 25th April 1988 को Netflix. Now, the word Netflix ये Randolph का idea था. The word Netflix comes from the two word net, which means internet, and flix, which means movies. तो कुछ इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में they were also renting out DVD on the per pay rent. Later in 1999 they came up with a monthly subscription model जहाँ पे लोगों को लेट फीस नहीं लगेगी, no due dates, etc. etc. And this no due dates and no late fee, this was the USP. Just in 2 years, they had more than 3 lakh customer base, which was achievement. Then later on 2002, when they went for the IPO, then almost 5.5 million shares, they were sold out at the rate of $15. In 2004, it was at the booming stage. But after 2004, when there was a wave of internet and the VCR and DVDs, they were riding out, there was a challenge. So slowly and gradually this graph was going down. But by the 2007, when internet was with everyone, internet was a household service. I'm talking about US. So then they started their online streaming service. Now their business model it's like they have license model and the original content. Now what is licensed content? ऐसी movies जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है बट बहुत पॉपुलर है, तो उनकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स खरीद लेता है. नाउ दिस फी डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलैरिटी मूवी एंड कितने टाइम तक उन्होंने ये लाइसेंस लिया है. सेकेंड, ओरिजिनल लाइसेंस. नाउ व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट लाइसेंस? अगर किसी प्रोडक्शन हाउस ने मूवी बनाई है और वो मूवी वो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे रिलीज करता है, ऐसी पहली मूवी थी हाउस ऑफ कार्ड्स. ठीक है. नाउ इसमें लाइसेंस फी ज्यादा लगती है. एंड द नेक्स्ट इज ओरिजिनल कंटेंट. दैट वाज इन 2016 दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट सीरीज द स्ट्रेंजर थिंग्स, व्हिच वाज सच अ ग्रेट सक्सेस. एंड आफ्टर दैट Netflix continuously focused in developing this original content. And today Netflix is so much focused on the original content that in every country it is focusing on developing regional content, developing local content. But at the same time, if we talk about India, in India, Netflix is little bit struggling in this OTT platforms. Why it is struggling? Because the market cap leader is Hotstar. Now, what is the little difference between the Hotstar and the Netflix? Now, Netflix focuses on the original content, focuses on the movies, it focuses on the web series. It doesn't have any access to the daily soap operas which Indians are habituated to. It doesn't have access
to the sport cricket. We Indians love cricket, and that's where the Hotstar has an advantage, competitive advantage over Netflix. That means Hotstar has IPL streaming rights. Hotstar has that daily soap opera content. You talk about the popular serials like ये रिश्ता क्या कहलाता है or all those other Star Plus serials. So these serials, daily serials and IPL, this is giving a competitive edge to Hotstar over Netflix. But Netflix co-founder, that is Reed Hastings, he have said that they are continuously working upon it. They are working upon it, developing local and regional content, and they are sure that soon they will expand their market, a market share in India as well. So this was the story about Netflix. In the next video, we will discuss another case study. Till then, thank you everyone. Hello everyone. This case study, let us start with our situation. Now situation ऐसी है कि आपको बैंगलोर से बांदीपुर जाना है, and you're like taxi, भैया बांदीपुर चलोगे? He's like yes, and आप टैक्सी में बैठ गए. ना बीच रास्ते पे टैक्सी ड्राइवर को रियलाइज होता है कि अच्छा जैसे ये रास्ता जंगल वाला है, ये रास्ता अच्छा नहीं है. सो उसने आपको बोल दिया अब मैं आगे नहीं जा सकता. एंड यू आर लाइक व्हाई? तो ही इज लाइक कि अभी आगे जाने के लिए 1.5 गुना किराया लगेगा. एंड यू आर लाइक नहीं, किराया तो पहले से फिक्स हो चुका है, अब मैं आपको ज्यादा पैसा क्यों दूं? टैक्सी वाले को लगा कि इसको और कोई टैक्सी नहीं मिलेगी तो ये मान जाएगा, और आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं मना कर दूंगा तो टैक्सी वाला नहीं मानेगा, और क्योंकि आपने टैक्सी वाले को बोला कि अगर आप मुझे यहाँ छोड़ दोगे तो मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा. दोनों में से कोई भी नहीं माना, तो टैक्सी वाले ने आपको बीच रास्ते पे छोड़ दिया और वो चला गया. अब आप क्या करोगे? आपको डेस्टिनेशन तक चल के जाना पड़ेगा. ऐसे ही कुछ हुआ था भाविश अग्रवाल के साथ जब उनको बैंगलोर से बांदीपुर जाना था. तो जब at that point of time Bhavish was working with Microsoft and yes obviously he was an IIT graduate. ठीक है, तो वो बैंगलोर से बीच रास्ते में टैक्सी वाले ने उसको उतार दिया and Bhavish have to walk down till बांदीपुर. चलते 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 on the way उनको ये सारे ख्याल आने लगे, poor quality of service, then rash behavior of drivers, हाई कॉस्ट ऑफ कैब सर्विसेज, इन सब का कुछ करना चाहिए. यहाँ से उन्होंने एक अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई किया, दैट इज वी नीड अ बेटर कैब सर्विसेज. और यही आइडिया उन्होंने अपने फ्रेंड अंकित भट्टी को सुनाई, एंड फ्रॉम देयर स्टार्टअप, एक नई कंपनी स्टार्ट हुई. एक ऐसी कंपनी जो आज की तारीख में पूरे साल में 1 बिलियन राइड्स डिलीवर करती है. इट हैज मोर देन 7,000 एम्प्लॉयज. इट इज ऑपरेटिंग इन मोर देन 250 cities in India. All over the world, it is operating its operations in India, Australia, New Zealand, UK. Today, it is valued at almost $6 billion. Yes, I'm talking about Ola. So, ओला की कहानी शुरू हुई 2010 में इस सिचुएशन के साथ. बट जब ओला स्टार्ट हुई थी 2010 में, उस टाइम पे उनके ऑपरेशंस वेरी not technology based, it was call center based. So if you want to book a Ola, you have to call to the Ola के call center. कॉल सेंटर में फोन करने के बाद ओला का जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव है, he will check the availability मिलने के बाद he will confirm you right. But at the same time you have to tell him the time, the location, your peak and destination, etc., etc. And according to the information given by you, the call center executive checks the availability and sends the car to you. At the same time, आपका कॉल खत्म होने के बाद उनको ड्राइवर को भी कॉल करना होता है. But then came the internet right, then they came up with the application. Now, जब ओला का application आया, majority of the things got sorted because the Ola algorithm, जैसे ही आप मोबाइल ऐप पे क्लिक करते हो, you find the location, आपकी जितने भी लोकेशन डिटेल्स है वो सारी नियर बाय कैब्स को चली जाती है. एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है कि कौन सा कैब आपको सर्विस देगा. But at the same time, marketing was also very important. So, Ola ने light asset model अपनाया. Ola की खुद की कोई गाड़ी नहीं होती है. अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप बिजनेस करना चाहते हो तो then you can get yourself registered with the Ola. So, Ola खुद का asset नहीं है. ओला की जितनी भी कार्स है वो खुद की नहीं है, वो उनके पार्टनर्स की है, ड्राइवर पार्टनर्स की है. इनिशियली ज्यादा से ज्यादा पार्टनर्स लाने के लिए ओला वेर गिविंग अराउंड 70%, 80% इंसेंटिव. सो बहुत सारे जनों ने शायद अपना जॉब छोड़ दिया, दे केम टू द ओला. इंसेंटिव्स का
पैसा भी उनका, ड्राइवर का पैसा भी खुद कमा रहे थे. So everyone who is getting the car on the Ola, they were making big money. But Bhavish knew in the long term he is gonna reduce the commission and reduce the incentive and increase the commission of Ola. Initially Ola was charging only 10% कमीशन बट वॉज गिविंग हाई इंसेंटिव. जैसे जैसे टाइम बीतता गया ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बनते गया एंड ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर आ गए. तो ड्राइवर कैसे आए? पहले भाविश ने ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दिया. जिसको गाड़ी खरीदनी थी उनको गाड़ी खरीदवाई, लोन चाहिए था उनको लोन दिलवाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके उन्होंने एक ड्राइवर फ्लीट, कार विद ड्राइवर फ्लीट को बनाया. स्टार्टिंग में ज्यादा इंसेंटिव दिया, कमीशन कम लिया, बाद में कम इंसेंटिव को कम किया और कमीशन को बढ़ाया. बट ये तो ड्राइवर्स आ गए. Bhavish always knew it is not the customer, it is the driver who will win the game for him. But at the same time, customer is also important. तो customer कैसे आया? Customer आया रेफरल प्रोग्राम के थ्रू. जैसे ही आप ओला वो ऐप को रेफर करोगे आपकी राइड फ्री हो जाती थी. तो बहुत सारे लोगों को जिनको राइड करना था वो क्या करते थे? रेफर करवाते थे, डाउनलोड करवाते थे, उनकी राइड फ्री हो जाती थी. इस तरीके से ओला अपना बेस बढ़ाता गया. वन ऑफ द यूनिक पॉइंट ऑफ ओला इज द रूरल कस्टमर एक्विजिशन. और स्टार्टिंग में Ola ride was very cheap, 6 rupees per kilometer, which is as cheap as maybe you can compare to the buses services. जैसे जैसे टाइम बीतता गया Ola expanded its services not only to cabs but to auto, premium cars like Mercedes, then IIT कानपुर में तो Ola Paddle भी है. So slowly and gradually driver base बढ़ता गया and customer base बढ़ता गया. Ola started expanding its services. 2017 में उन्होंने Food Panda को भी खरीद लिया. So now soon it would be in the food delivering services. So this is how Ola is a big success story today. In our next video we will discuss some another story. Till then, thank you everyone. Hello everyone. In today's case study we will discuss something fantasy. I mean, we all know that we Indians love cricket. बट जितना हमारा क्रिकेट के लिए प्यार है उतना ही प्यार या उतना ही इंटरेस्ट हम लोग इस चीज में बताते हैं. जैसे कि इंडिया में कहा जाता है एवरीवन इज क्रिकेटिंग गुरु. सब लोग को अपने कमेंट्स देने के हैं कि कौन आज सेंचुरी मारेगा, कौन जल्दी आउट हो जाएगा, कौन कितने विकेट्स लेगा, किसका कितना स्ट्राइक रेट होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ना कुछ इसी तरीके से इस फैंटेसी की स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2003 में, जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हर्षित जैन अपनी पढ़ाई कर रहे थे. तब वहां पे ऑब्वियसली इन वेस्ट फुटबॉल ज्यादा चलता है, तब वो वहां पे फुटबॉल फैंटेसी खेलते थे. जब 2008 में वो इंडिया वापस आए एंड ही फाउंड दैट देयर इज इवन दो इंडिया लव्स क्रिकेट बट इंडिया में अभी भी फैंटेसी क्रिकेट को लेके कुछ भी नहीं आया. यही कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने फ्रेंड्स भावित शेठ को बताया एंड वहां से इस फैंटेसी जर्नी की शुरुआत हुई. इट टुक 4 years इन द रिसर्च एंड ऐप डेवलपमेंट एंड फाइनली 2012 में लॉन्च हुआ ड्रीम 11. नाउ ड्रीम 11 जब स्टार्ट हुआ तो वो एक फैंटेसी क्रिकेट के लिए स्टार्ट हुआ था. दो इट टुक टाइम, उसका ग्राफ एकदम जल्दी से नहीं बढ़ा. बट 2014 के बाद जब इंडिया में डेटा रेवोल्यूशन आया, जियो आने के बाद तो और भी ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो क्विकली ड्रीम 11 के सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए. पहले 2 साल में, दैट इज फ्रॉम 2012 to 2014, it took 2 years to reach 1 million subscribers, but for the next 1 million subscriber it took only 1 year. But then there was a game changing moment जब it took a partnership with the IPL. IPL के साथ पार्टनरशिप होने के बाद and at the same time they had महेंद्र सिंह धोनी as the brand ambassador. तो दोनों ही चीज, आईपीएल क्रिकेटिंग में बहुत बड़ा इवेंट है, धोनी क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है. सो ये दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए एंड देयर यू हैव अ फैंटेसी प्लेटफॉर्म, अ सक्सेसफुल फैंटेसी प्लेटफॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं ड्रीम 11. टुडे, आज की तारीख में ड्रीम 11 हैज मोर देन 50 million डाउनलोड्स. बट what interesting fact is कि जहां इंडिया में everyone is using Android, प्ले स्टोर पे से हम लोग Android एप्स डाउनलोड करते हैं, बट Dream 11 is not there on the Android. Yes, Dream 11 खुद की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करवाते हैं आज की तारीख में, and still it has more than 50 million users. Isn't it great? So what is Dream 11? Dream 11, it's like whenever there is any match for any sport, say for example cricket, football, basketball, kabaddi, then you can create your own team.
Now it is not necessary कि वो एक ही टीम में से होने चाहिए. The members can be of the either of the team. You have to just select the best performers whom you think they are gonna perform today. आपके हिसाब से जो भी बेस्ट परफॉर्मर है उनको सिलेक्ट कीजिए. उनका टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट में लगाते हो तो देयर हैज टू बी 11 प्लेयर्स, मिनिमम 3 बैट्समैन होने चाहिए, 3 बॉलर होने चाहिए, 1 विकेट कीपर होना चाहिए एंड ऑलराउंडर होने चाहिए. देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस गिवन टू यू, बट विद इन दैट कॉम्बिनेशन आपकी टीम फिट होनी चाहिए. एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर कैप्टन. आपके कैप्टन को डबल पॉइंट्स मिलते हैं. जिसकी फैंटेसी टीम को जितना ज्यादा पॉइंट्स मिलेगा, जो नंबर 1 पे होगा उसको सबसे ज्यादा विनिंग मिलेगा. बट नाउ देन देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज इन दिस गैम्बलिंग. यस, जैसे जैसे ड्रीम 11 का सक्सेस बढ़ते गया, ड्रीम 11 पे ये एलिगेशंस लगे कि ये गैम्बलिंग है एंड गैम्बलिंग शुड नॉट बी अलाउड. हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस भी हुआ, बट जब केस की हियरिंग हुई एंड जो जजमेंट आया, तो जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहा दैट फैंटेसी लीग इज बेस्ड अपॉन द स्किल्स एंड प्रेडिक्टेबिलिटी नॉलेज ऑफ द यूजर, सो इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज प्योर गैम्बलिंग. सो गैम्बलिंग के एलिगेशंस लगने के बावजूद ड्रीम 11 ने उस केस को लड़ा. ना सिर्फ लड़ा बट उस केस को जीता. एंड टुडे Dream 11 is a household name for all the cricket lovers when it comes to the fantasy cricket. So this was a story about Dream 11. I hope you enjoyed the video. Till I see you in the next video with some another case study. Till then, thank you everyone. Hello everyone. In today's case study, we will discuss the case about food delivery giant Zomato. So now, we all love to eat out. Dining out, going to new hotels, going to new restaurants. But जब हम लोग होटल एंड रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी इज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, काफी तो सारा टाइम हम लोग हमारा मेनू कार्ड सर्च करने में, कौन सा डिश ऑर्डर करना है, व्हाट आई शुड ट्राई, इसमें हम लोग स्पेंड करते हैं. सो नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आप ट्रैवलिंग करते वक्त या आपके घर बैठे अगर आप इस मेनू कार्ड को देख पाओ तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. कुछ इसी आइडिया के साथ स्टार्ट हुआ था जोमेटो, जिसका पहले का नाम था फूडीबे. नाउ फूडीबे स्टार्टेड इन 2008 बाय 2 IIT दिल्ली ग्रेजुएट जिनका नाम था दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा. दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा को ये आइडिया आया कि जब भी लोग होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो उनका ज्यादातर टाइम मेनू कार्ड को देखने में या कौन सी डिश ऑर्डर करनी है इसे डिसाइड करने में चला जाता था. और वहीं से उनको आइडिया आया फूडीबे. फूडीबे एक ऐसी वेबसाइट थी जिसपे बहुत सारे होटल्स के मेनू कार्ड्स होते थे एंड पीपल कैन व्यू द मेनू कार्ड्स एंड देयर प्राइसेस. इसके साथ साथ रेटिंग का ऑप्शन भी वहां था जिससे यू कैन डिसाइड ऑन द बेस्ट प्लेसेस इन द दिल्ली. यस, व्हाई आई एम सेइंग इन द दिल्ली? बिकॉज दिस स्टार्टअप वाज स्टार्टेड इन दिल्ली एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सपैंडेड टू कोलकाता एज वेल एज मुंबई. बट फूडीबे से जोमेटो क्यों? देन इन 2010 and 11 जब eBay was also expanding in India, तब दीपेंद्र एंड पंकज रियलाइज कि फूडीबे जो नाम है ये eBay के साथ बहुत मिलता जुलता है. यहां से उन्होंने डिसाइड किया टू चेंज द नेम ऑफ द फर्म. सो दे हैड डिसाइडेड टू कम अप विद द नेम जोमेटो. अभी व्हाई जोमेटो? इसके पीछे ऐसा कोई रैशनल लॉजिक नहीं है. इट इज जस्ट अ राइमिंग वर्ड ऑफ टोमेटो, जहां से वर्ड आता है जोमेटो. Isn't it very simple? But still, it is one of the very well-known brand name. So, Zomato अपना business कैसे कमाता है? I mean, what are their expenses and what are their revenue models? So first, let us discuss about their expenses. तो Zomato के आज एक ऑनलाइन मेनू कार्ड वेबसाइट से एक फुल फ्लैट फूड डिलीवरी सर्विस है. ठीक है, उनका खुद का एक मोबाइल ऐप है जहाँ पे हम लोग डे टू डे हम सब Zomato ऐप से फूड ऑर्डर करते हैं. आज की तारीख में फूड एग्रीगेटर में अगर जोमेटो का कोई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तो वो है स्विगी. बट हाउ जोमेटो वर्क्स? ठीक है, तो जोमेटो के कॉस्ट क्या क्या है? सबसे पहले डिस्काउंट. हमेशा आप कभी भी जोमेटो पे लॉग इन करो तो आपको 30 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा. मे बी वो जोमेटो का बर्थडे है और दे आर सेलिब्रेटिंग सम इवेंट, सम फेस्टिवल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो कुकिंग नवंबर, इट्स वन ऑफ द इवेंट. सो ऐसे किसी ना किसी इवेंट या किसी ना किसी डे की वजह से आपको कभी भी जोमेटो पे 30 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा. दूसरा है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट.
यानी कि जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया रखा है, उनकी सैलरीज, उनका IT ऐप का डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है। एंड तीसरा उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज। आप कहीं पे भी चले जाओ, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज टेलीविजन मीडिया, वेदर इट इज सोशल मीडिया, आपको जोमेटो के एड्स दिख जाएंगे। बट एट द सेम टाइम जोमेटो के रेवेन्यू मॉडल्स भी है। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट जोमेटो रेवेन्यू मॉडल, जोमेटो इनिशियली उनकी जो फंडिंग है वो दीपेंद्र और पंकज ने खुद ने की थी। बट 2011 के बाद उनको इन्फोएज एंड नौकरी.com के जो फाउंडर है, नौकरी.com के फाउंडर ने उनको $1 मिलियन का फंडिंग दिया। वहीं इन्फोएज उनके एक मेजर इन्वेस्टर है। 2019 तक जोमेटो में 15 राउंड्स की फंडिंग हो चुकी है और उनको ऑलमोस्ट $800 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। जब तक रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 2018 में उनका रेवेन्यू वाज अराउंड 485 करोड़, बट वो 188% बढ़ के 2019 में वो 1485 करोड़ हो गया। बट एट द सेम टाइम लॉसेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द हायर कंपटीशन। बट अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो जोमेटो का रेवेन्यू आता है सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से। जोमेटो पे किसी भी होटल फ्री में लिस्टिंग करवा सकता है, बट अगर आपको टॉप सर्चेज में आना है तो जहां पे आपको प्रोमोटेड दिखता है, दोज आर पेड एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज कमीशन। जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका 20% कमीशन जोमेटो को जाता है। थर्ड इज इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फूड फेस्ट होते हैं, इन इवेंट्स को जोमेटो खुद प्रमोट करता है। जोमेटो खुद कोई इवेंट लेके आता है या जोमेटो दूसरे के इवेंट्स प्रमोट करता है। फोर्थ इज जोमेटो प्रोडक्ट, जैसे जोमेटो बुक। जोमेटो बुक एक टेबल मैनेजमेंट सिस्टम है। जोमेटो ऑर्डर एक सॉफ्टवेयर है जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है और उसके लिए जोमेटो मंथली फीस चार्ज करता है। हाइपर प्योर करके एक जोमेटो एक नया सर्विस लेके आया है जहां पे जोमेटो फार्मर्स और रेस्टोरेंट्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। जोमेटो को ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स लगता है एंड दिस रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर्स। सो हाइपर प्योर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स and Zomato. So these are the few revenue models. But at the same time, जैसे मैंने कहा, Zomato and Swiggy फूड एग्रीगेटर में ये दोनों नेक टू नेक कॉम्पिटिटिव है। उबर इट्स जो है वो भी है। एंड रिसेंटली आई मीन 2 years बैक फूड पैंडा को ओला ने एक्वायर किया है। सो सून यू विल सी फूड पैंडा ऑल्सो बाउंसिंग बैक। सो दिस वॉज अबाउट Zomato and food aggregator. In our next video, we'll discuss another case study. Till then, thank you.